Hello everyone, how are you all? This is the second session of the fifth part of chapter number 2, exercise 2.5. In the previous part, we have done till question number 8. We have discussed the questions till question number 8. In this part, we will discuss from question number 9. So question number 9, we have to verify. The first verify is x cube plus y cube equals to x plus y into x square minus xy plus y square. We have to verify that this LHS equals to this RHS. So what we have done, we have multiplied this x from this bracket, then put plus sign here and then y from this bracket. तो जब हमने x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा, so x into x square will turn up into x cube minus x into x5 will become minus x square y and plus sign x into y square will become xy square. Then plus अब y के अंदर इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, then we are getting this x square y into minus x5 will become minus xy square, then plus sign y into y square will become y cube. Right, now we can see that this is minus x square y and this is plus x square y, so we can cancel it. ऐसे यहाँ पे ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, सो वी कैन कैंसिल इट. सो एट द लास्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज लेफ्ट, सो दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू प्रूव. राइट, सेकेंड पार्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, we have to prove that this LHS is equals to x minus y into x square plus xy plus y square. फिर से इस पार्ट में हमें यही करना है, वी हैव टू टेक RHS और RHS में जो फर्स्ट ब्रैकेट की दो टर्म्स हैं x और माइनस वाई, इसकी इस ब्रैकेट से एक एक करके मल्टीप्लाई करनी है. सो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन पुट माइनस साइन, फिर y की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दी, x की अंदर इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करी, देन वी आर हैविंग दीज थ्री टर्म्स, माइनस y की अंदर मल्टीप्लाई करी, देन वी आर हैविंग दीज टर्म्स, सारे साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस. राइट, फिर से वी कैन कैंसिल द like terms having the different sign, and then at last we are having x cube minus y cube. That we have to prove. Then question number 10th, we have to factorize. Two parts are there, we have to factorize. So these parts are again in the form of these, as we have done in question number 9. These we can say these are the indirect identities. So 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, सो 27y क्यूब को हम 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, 125z क्यूब को हम 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं. ये हो गया x क्यूब प्लस y क्यूब, इट मीन्स दिस इज x, दिस इज y. सो जो हमने यहाँ पे प्रूव करना था x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम x की जगह 3y और y की जगह 5z लिख देंगे. वी कैन सी हियर, right, x plus y into x square minus xy plus y square, brackets open करेंगे and that is our answer. Second part is 64m cube minus 343n cube. Now this is just like the second one, x cube minus y cube. जिसका एक्सपेंशन क्या होता है, x minus y into x square plus xy plus y square. So अब x हमारा 4m हो जाएगा और y हमारा 7n हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 64 4 का क्यूब होता है, तो 64m क्यूब को हम 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं. इसी तरह 343 7 का क्यूब होता है, तो 343n क्यूब की जगह हम 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं. राइट, वैल्यूज पुटअप कर दी हमने अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. वी कैन सी हियर, ओपन दैम एंड दैट इज योर आंसर. राइट, देन क्वेश्चन नंबर 11, अगेन वी हैव टू फैक्टराइज. We have to factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus xy 9xyz. Right, so according to the identity number 10, the last one we can see here, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. अगर ये दिया होता है उसका एक्सपेंशन क्या होता है, a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. So we have to use this identity, the last one. सो 27x क्यूब को हम 3x क्यूब लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस हमारे पास वहाँ पर था 3abc, तो यहाँ पे 3 हमें अपने पास लिखना है कांस्टेंट. दिस इज अवर a, दिस इज अवर b एंड दिस इज अवर c. तो 3x इंटू y इंटू z. तो इसको हमने आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया पहले.
अब उसका एक्सपेंशन क्या था, a प्लस बी प्लस सी, तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, इंटू a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब z स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y, सो ए बी की जगह 3x इंटू वाई, बी सी की जगह y इंटू जेड, वी कैन सी y इंटू जेड, बी सी, और लास्ट है सी ए या ए सी, इट मीन्स 3x इंटू जेड, राइट। ओपन दिस ब्रैकेट विल रिमेन द सेम, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz minus 3xz या zx. It's totally up to you how you can write. Right? Then question number 12. Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equals to 1 upon 2 into x plus y plus z into x minus y का whole square plus y minus z का whole square plus z minus x का whole square. So for this what we have to take? We have to take the RHS part. हमने RHS पार्ट ले लिया, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। सो फर्स्ट हाफ ऐसी रहेगा, ये ब्रैकेट ऐसी रहेगी, दीज आर द आइडेंटिटीज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। वी नो डैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर y माइनस जेड में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, फिर z माइनस एक्स में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, राइट। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर, ऐसे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बिकम 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बिकम 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, राइट। अब सेकेंड ब्रैकेट में हम देख सकते हैं हर टर्म के साथ 2 है, सो उस 2 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये दोनों ब्रैकेट्स और हाफ एज इट इज रहेगा। इस पूरी ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, राइट। सो एट लास्ट दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट, और हमें पता है ये किसका एक्सपेंशन है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड आइडेंटिटी, दिस इज द लास्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 10, this is the expansion of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, right. Then question number 13th, we have to, it is given that x plus y plus z equals to 0, we have to show or we have to prove that x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz, again an important one. So जो हमें गिवन था हमने पहले वो ले लिया, x plus y plus z equals to 0, प्लस का z है, अगर हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो वो माइनस में आ गया, तो हमारी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जेड। अब हमने इन दोनों साइड्स का क्यूब कर दिया, तो जब क्यूबिंग करी तो यहाँ पे होल क्यूबिंग आ जाएगी, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस जेड का होल क्यूब, राइट। सो ये आइडेंटिटी बन गई हमारी, आइडेंटिटी नंबर 8, x प्लस वाई का होल क्यूब, उसको हमने उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जेड का क्यूब, सो माइनस जेड क्यूब आ गया। अब x प्लस वाई की हमारी क्या वैल्यू है फ्रॉम दिस इक्वेशन, इट इज माइनस जेड, तो यहाँ x प्लस वाई की जगह हमने माइनस जेड रख दिया, बाकी सब कुछ सेम है, राइट। अब प्लस माइनस माइनस 3xyz, माइनस का 3xyz इधर ले गए तो प्लस का कन्वर्ट हो गया, माइनस का z क्यूब इधर ले गए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस वी कैन सी हियर एक्जैक्टली, राइट। Then question number 14th, without doing any calculation we have to find the values of these parts. So first one minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube. So हमने क्या करा, इन्हें x, y और z में चेंज कर लिया, this is the value of x, this is the value of y and this is the value of z. अब हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 11th हमने करा था, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो हम कह सकते हैं इन नंबर्स के क्यूब्स का सम किसके इक्वल होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के इक्वल। तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी, हमने पहले ये शो करा अगर हम तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है, राइट। अगर 0 आ रहा है इट मीन्स हम कह सकते हैं इन तीनों नंबर्स के क्यूब का सम किसके इक्वल होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सो
हमने लिखा -12 क्यूब जो भी हमें पार्ट दिया है प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5. इन सबको मल्टीप्लाई करा, सो प्लस माइनस माइनस साइन एंड इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, देन वी आर हैविंग 1260. राइट. देन सेकेंड पार्ट 28 क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब. फिर से हमने ये x की वैल्यू असाइन कर लिया, दिस विल बिकम y एंड दिस इज आवर z. फिर से हमने प्रूफ करा अगर हम तीनों नंबर्स को एडअप करते हैं तो आंसर 0 के इक्वल होगा. सो वी कैन सी दैट व्हेन वी ऐड देम द आंसर इज 28 माइनस 28 विच इज 0. और अगर वो 0 हो रहा है तो इसका मतलब इन तीनों नंबर्स के क्यूब्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. राइट. सो हमने वैल्यूज लिख दी इक्वल्स टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 माइनस माइनस प्लस, और इन चारों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करा, देन द आंसर इज 1680. देन क्वेश्चन नंबर 15, हमें एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, हमें उसकी लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है. हमें पता है एरिया क्या होता है, इट इज L इंटू बी एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हमें क्या करना है, बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड हमें इसे फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो हम देख सकते हैं 35 को हमने कैसे ब्रेक करके लिखा, 15 इंटू 20. राइट, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, सो 20 प्लस 15 बिकम 35. और अगर 15 और 20 को हम एडअप करेंगे तो आंसर आएगा 300. राइट. सो यहां से पेयर्स बना लिए हमने, यहां से 5a कॉमन ले लिया तो 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स आता है. 2a थे, एक बाहर ले लिया तो एक a बचा. माइनस अब 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, एक ही a था वो हमने बाहर ले लिया, इट मीन्स 5a माइनस 3. माइनस साइन, ये दोनों नंबर्स 4 के टेबल में जाते हैं, इट मीन्स 5a माइनस 3 अगेन. राइट, ब्रैकेट्स आर सेम तो वो एक बार कॉमन ले लिया और जो बाहर बचा वो दूसरी ब्रैकेट में. सो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. राइट. देन सेकेंड पार्ट अगेन उसे स्प्लिट कर लिया हमने, फर्स्ट 2 के पेयर्स बनाए, देन वी आर हैविंग दिस, लास्ट 2 के पेयर्स बनाए, वी आर हैविंग दिस. कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स आर सेम, उसे हमने कॉमन ले लिया और जो बाहर बचा 7y माइनस 3 उसे हमने दोबारा दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया. अगेन वी नो द एरिया इज L इंटू बी, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. राइट. देन next question is volume. Again we have to find the dimensions, means length, breadth and height. So 3x square minus 12x. So what we can do, we can take common. यहाँ से 3 और x दोनों में आ रहा है और ये दोनों नंबर्स 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के टेबल में जाते हैं. So 3x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3x चला गया तो एक x बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, इट इज 4. राइट. सो वॉल्यूम हमें पता है, इट इज L इंटू बी इंटू एच. राइट. इसका मतलब हमारा क्या बन गया, इट इज दिस इज L इंटू बी इंटू एच. सो लेंथ इज 3, ब्रेथ इज x and height is x minus 4. Right. Then the last part 12ky square plus 8ky minus 20k equals to volume. This is the volume. So हमने पहले यहाँ से 4k कॉमन ले लिया बिकॉज 4k टेबल में सारे नंबर्स जाते हैं और हर टर्म में k भी प्रेजेंट है. सो 4k कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 4 3 12, सो 3y स्क्वायर प्लस 4 के टेबल में एक 2 टाइम्स आता है 2y और 4 के टेबल में 25 टाइम्स आता है तो -5. तो 4k एज इट इज रहेगा. इसे फिर से हमने स्प्लिट कर लिया. राइट. स्प्लिटिंग करके हमारे पास ये 4 टर्म्स आई. फर्स्ट 2 टर्म में से 3y कॉमन ले लिया तो y माइनस 1, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो y माइनस 1, y माइनस 1 एक बार लिख लिया, 3y प्लस 5 हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया. नाउ दिस इज आवर लेंथ, दिस इज आवर ब्रेथ एंड दिस इज आवर हाइट. सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो दिस इज द solution of the question number 16. Hope this video is again helpful for you people. If you like it then please like my video and also अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है then please do it. आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस please give it. It is very really necessary for me. Thank you very much.